Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 98. Now, here we are going to learn regarding the hydrocarbon topic and that to the alkenes. We already studied that alkanes in quite detail. Now, regarding the alkenes, we have started they are aliphatic unsaturated hydrocarbons. And in the last lecture, I explained the structural details or structure, how ethylene molecule is formed, that we have shown there by that sp2 hybridization in carbon. So please refer that because that is a common point, common article between the topic nature of chemical bond and this alkene. It can also be asked in that topic nature of chemical bond. Okay. Now look here. Structural details of ethylene or ethene are very important to know. Actually, we have seen that ethylene molecule C2H4 has got carbon-carbon double bond. If you go to the structure like this, normal, what we write for ethene, CH2 double bond CH2. This we know. Okay, this is that ethene or ethylene. But in that ethene or ethylene, we have seen that in that double bond, one is the sigma bond, CC sigma bond, which is formed by axial overlapping of that sp2 hybrid orbitals. Axial overlapping क्या होता है? Overlapping of the half filled atomic orbitals along the same axis. एक ही एक्सिस पे जब उसका ओवरलैपिंग होता है उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैपिंग, isn't it? And the other carbon-carbon bond is formed by the vertical or lateral overlapping. Vertical or lateral or sidewise overlapping जब होती है half filled atomic orbitals की, then that bond is known as the pi bond. So the other bond is a pi bond. Okay, one is the sigma bond, other is the pi bond. One is the sigma bond, other is the pi bond we have shown. अब ये ऐसा क्यों दिखा रहे? हमको ऐसा लगेगा अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे ये ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, सर तो बोल रहे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ही है दोस्तों. पर क्या होता है वो कार्बन का पीजेड ओवरलैप है. यानी इन दैट लास्ट लेक्चर वी हैव शोन दैट दिस कार्बन हैज गॉट वन अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital which is dumbbell shaped and it has got two lobes. ये दो ऑर्बिटल्स जो है वो हर एक ऑर्बिटल के ये दो लोब्स है. वन इज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ पेपर, अदर इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ पेपर. ये इथिलीन मॉलिक्यूल है दैट इज पर्टिकुलरली प्लेनर मॉलिक्यूल. ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन में है, isn't it? कार्बन कार्बन दो एटम्स एक ही प्लेन में, उसका एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है. p ऑर्बिटल का एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है. एंड दैट्स व्हाई they carry out the electron, they are present there half field, they carry out the sharing of electron and overlapping the orbitals in this parallel or sidewise manner. ये parallel manner से या sidewise manner से overlap करते हैं, isn't it? So obviously that will not be very much stronger. देखो जब हम शेक हैंड करते हैं किसी को, isn't it? अब तो अभी नहीं आपको कर सकता, वर्चुअल है. बट वेन एवर वी विल मीट समबडी एंड वी विल हैव द शेक हैंड्स, तो वो होगा एक्सियल ओवरलैपिंग. उसका भी हाथ वैसे ही आने वाला है उसी प्लेन में, हमारा भी हाथ वैसा ही है, isn't it? And then that will be the axial overlapping, that will be very fast, strong I will say. वो strongly held किया हुआ होगा. पर ये इलेक्शन के टाइम जब वोट मांगने के लिए अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, isn't it? अपना दल अलग अलग है लेकिन एक उसकी फ्रंट बना लेते हैं, isn't it? महाविकास आघाड़ी. तो उस टाइम वो जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो ऐसे स्टेज पे खड़े रह के हाथ ऐसा ऊपर करते हैं, isn't it? ये समझो है एक पार्टी का, वो दूसरा है दूसरे पार्टी का, फिर दोनों अपना हाथ जो है ऐसा ऊपर हाथ लेके शेक हैंड करते हैं, हम एक है ऐसा दिखाते हैं. दिखाने को रहता है, वो अंदर से उनकी धुसफुस चालू रहती है, isn't it?
और वो मीडिया वाले बहुत एंजॉय करते हैं। इसको बोलते हो कांग्रेस वाले ने आपको ऐसा बोला, उसको बोलते हो राष्ट्रवादी ने आपको ऐसा बोला, वो मज़ा लेते हैं, टीआरपी भी बढ़ाते हैं। और हम जो टाइम पास करने वाले लोग हैं वो देखते रहते हैं, इधर हमको कुछ फ़ायदा नहीं रहता उसका। तो हम स्टडी में अगर इन्वॉल्व है, सो डोंट गो फॉर दैट न्यूज़ चैनल, दे आर होपलेस एंड दे आर नेगेटिव न्यूज़ ऑल, ओके। तो उसके ऊपर मत जाओ। तो ये जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, दैट इज पाई बॉन्ड, इजंट इट। ये वर्टिकल ओवरलैपिंग का, तो ये वर्टिकल ओवरलैपिंग का पाई बॉन्ड है। एंड सिंस इट्स वन लोब इज अबव द प्लेन ऑफ पेपर एंड अदर इज, ये एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है, so electron cloud will be present above the plane of paper, below the plane of paper. वही तो यहाँ पे दिखा है, डॉट डॉट डॉट, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, एक ही पाई बॉन्ड है, उसके ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों प्लेन में हम दिखा रहे हैं, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान में लो, ये बहुत बार इतना डिटेल कोई बताता नहीं है। तो मैं तो जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता है यार ये ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, ये सर खामखा बोल रहे डबल बॉन्ड है। यहाँ तो दिखा रहे एक ट्रिपल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, फिर ये 3 बॉन्ड हो गया ना, इजंट इट। तो वो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पाई बॉन्ड, बट दैट इज अ वीक बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। यहाँ पे बाकी के पूरे CH बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, CH bond is formed by axial overlapping, उसको कहते हैं sp2s overlap, sp2-s overlap। sp2 ऑर्बिटल है कार्बन का और s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और ये जो है सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp2 axial overlap, and that's why it is called as the sigma bond, okay। ये जो दिखा रहे हैं that particular bold line means that hydrogen is present above the plane of paper, and dotted line का मतलब क्या है, present below the plane of paper, okay। प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, वो प्लेन ऑफ पेपर के, प्लेन यानी एरोप्लेन नहीं, isn't it? देन ये जो है, ये एक फिगर दिखाने का तरीका ये है, और ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल डिटेल्स यानी बॉन्ड एंगल वगैरह मैंने बताया आपको, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे HCC bond angle is 121.7 degree and HCH bond angle is 116.6 degree, exactly उसको हम approximately 120 डिग्री कहते हैं। ट्रायंगुलर है वो, isn't it? ट्रायंगल के 3 कॉर्नर को, सो इसको approximately 120 डिग्री कहते हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। HCH एग्जैक्ट डिटेल हमको मालूम होना चाहिए, ये लर्न बाय हार्ट करो। देन बॉन्ड लेंथ जो है, दो बॉन्ड की जो लेंथ है कार्बन कार्बन की, फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर न्यूक्लिया, दे कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। दो एटम के सेंटर, बॉन्डेड एटम के सेंटर से अगर लिया, इट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। तो वो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है इन केस ऑफ अल्केन। PM यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। हमें मालूम, इतनी छोटी लेंथ किस फुट पट्टी से मेजर की होंगी, किसको मालूम, बताते तो बताते। देन अनदर इज C डबल बॉन्ड C, 134 पिकोमीटर इन अल्कीन। ये जरूर ध्यान में रखो, लर्न इट बाय हार्ट। तो अल्कीन में ये बॉन्ड लेंथ लेस है, एंड दैट्स व्हाई अल्कीन आर हैविंग स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड। पर उसमें भी देखो आप, अगर बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये देखेंगे तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए 348 लगती है किलो जूल पर मोल, ओके। पर डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है 681। यहां पर आपने एक नोट किया होगा, इट इज नॉट एग्जैक्टली डबल। 348 के डबल अगर करते आप तो कितना आ जाता, 696। ये 696 नहीं है, ये कितना आ जाता, 348 यानी that particularly 3 and 3 that is 696 आता, ये आता है 681। So why it is less? Because pi bond is weak here, isn't it? That's why it requires less energy. And another thing is that because of pi bond, alkenes are highly reactive, क्योंकि ये pi bond easily break हो सकता है, uncomfortable लगता है उनको, isn't it?
electrophilic reagent can attack very easily there, and the bond can break very easily. And that's why alkenes are more reactive than alkanes. And the carbon-carbon bond, double bond breaks very easily. Alkenes show more reactions. That all we shall learn in the next lecture. So please give likes and share to this video. I am sure you must have understood the part. Okay? और ये learn करो अच्छी तरह से. We shall meet again in the next lecture. Thanks a lot.